اور اس کو کہتے ہیں نیا تھر نیا پاکستان، اس کو کہتے ہیں میگا پروجیکٹ۔ بلاول بھٹو زرداری نے تھر کول پاور پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ہم باتیں نہیں کام کرتے ہیں، آج تھر سے کالا سونا نکل رہا ہے۔ یہ کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔ تھر کول پاکستان کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبہ ہے۔ چاہتا ہوں تھر میں انجینئرنگ یونیورسٹی بھی بنے، تھر کے اسکولوں اور اسپتالوں کو بہتر بنائیں گے۔ وہ تھر کول پاور منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ نیا تھر یہ ہوتا ہے نیا پاکستان، دوسرے بات کرتے ہیں آپ کا حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کر کے دکھایا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں گڈ گورننس، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوری، اس کو ہم کہتے ہیں میگا پروجیکٹس۔ باقی سب باتیں کرتے ہیں، آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ 5000 مربع سرزمین جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت کی قبضہ سے واپس پاکستان کا سرزمین بنایا، اور آج اس سرزمین سے کالا سونا نکل رہا ہے، تھر کا کولا نکل رہا ہے، اور پورا پاکستان روشن ہوگا۔ عوام ہمارا ساتھ دیں، ہم حالات بدل دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہم یو ٹرن لینے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یو ٹرن لینے والے گر جاتے ہیں، انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اگر آپ اس پلانٹ کا بھی دورہ کریں نا، یو کین اونلی گو ون وے اینڈ دیر از ریٹن ہیئر نو یو ٹرنس۔ کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو یو ٹرن، پلیز جوائن us. If you U-turn, you're going to fall in some pit and get destroyed. میں نے دیکھا ہے اگر آپ اس پلانٹ کا بھی دورہ کریں نا، you can only go one way and there's written here no U-turns. کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے we are not going to U-turn, please join us. If you U-turn, you're going to fall in some pit and get destroyed. نواز شریف کے دور حکومت میں تھر کول منصوبے کو بند کیا گیا تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے کہا کہ منصوبے کو صرف ذاتیات کی وجہ سے بند کیا گیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا اس موقع پر آپ بھی دیکھیے۔ جب یہ نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو جناب کہنا نہیں چاہیے کہ بی بی کے کام ان کو اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ یہ سمجھیں، میں فرینکلی کہہ دوں کہ جیلسی تھی۔ تو چودھری نثار صاحب نواز شریف صاحب کے وہ وزیر تھے انچارج بجلی کے بھی اور تیل کے بھی۔ تو میں نے ان سے کہا آپ سے تو ہم نہیں مانگ رہے ہیں، یہ بی بی کا پروجیکٹ ہے، اس کو چلنے دیں۔ لیکن چودھری صاحب نے اس وقت جواب یہ دیا، یہ تاریخی بات ہے اور ڈاکیومنٹ ہے میرے پاس۔ انہوں نے کہا جی ملک میں تو بہت بجلی ہے، یہ کیوں ہم اتنا خرچ کریں کہ بلینس آف ڈالرز ہوں گے خرچ، اور اس کو ختم ہی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ختم کر دیا تھا اس جیلسی میں۔ تھر کول پاور پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب میں موجود سینیٹرز اور اراکین اسمبلی کا کہنا ہے کہ آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب پورا ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا کہ تھر بدلے گا پاکستان۔ بدلے گا پاکستان، یہ شہید بیوی کا ایک خواب تھا۔ 93 میں جو گورنمنٹ آئی تھی اس میں ارتھ بریکنگ سیریمنی یہاں پہ پہلے شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب نے کی تھی، تھر بدلے گا پاکستان۔ تھر بدلے گا پاکستان، یہ وہ سلوگن، یہ موٹو جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو کا ویژن، اس کے تحت، اور آج آپ دیکھیں اس خواب کی عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ بی بی کا یہ خواب بھی تھا اور بی بی کا یہ سلوگن بھی تھا کہ تھر بدلے گا پاکستان۔ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو بدلنے کی شروعات ہو چکی ہے۔ آج کے بعد میں تھر ول بی ڈیلیورنگ ٹو پاکستان۔ جو کہتے ہیں کہ تھر بدلے گا پاکستان، وہ یہی ہے کہ میجر انرجی سیکٹر کے اندر تھر پارکر ول بی دا میجر پلیئر ان پاکستان۔
खबर आपको देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट हाउस में एक चैम्बर बिलावल भुट्टो जरदारी को दे दिया। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीएसी को अलॉट चैम्बर बिलावल भुट्टो जरदारी को दिया। चैम्बर पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 1 के सामने मौजूद है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक से बात करेंगे। इरफान, आगाह कीजिएगा, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी को एक चैम्बर अलॉट किया है। जी बिल्कुल, देखिए 2 चैम्बर थे शहबाज शरीफ के पास। एक हैसियत अपोजिशन लीडर उनको मिला, जबकि दूसरा चेयरमैन बतौर पीएसी उनको मिला था। और उन्होंने जो मुफाहमत के दरवाजे खोले हैं दोनों जमातों के दरमियान, उसी पर अमल करते हुए अपना एक चैम्बर बिलावल भुट्टो जरदारी को दे दिया है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी भी पार्लियामान में आएंगे तो अपना चैम्बर इस्तेमाल करेंगे। इस चैम्बर की बाकायदा तज़ीन और आराइश का सिलसिला भी जारी है और अब इसकी तज़ीन और आराइश जारी है और उसके लिए तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ आज एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है जो मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी के दरमियान होगी, जिसमें मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। ये मुलाकात आज रात तय होना करार पाई है। जी अच्छा इरफान मलिक, इस हवाले से बताइएगा, इतलात ये भी हैं कि स्पीकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को चैम्बर देने से इनकार किया था। इसकी क्या वजह है? इस हवाले से भी तफसीलात शेयर कीजिएगा। देखिए, पार्लियामान में अपोजिशन लीडर को ही सिर्फ चैम्बर मिलता है। इससे पहले ऐसी कोई रवायत नहीं थी कि अपोजिशन की दीगर जमातों को भी कोई चैम्बर मिल सके। पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की थी कि स्पीकर कौमी असम्बली से चैम्बर दिया जाए, लेकिन स्पीकर ने ये वाजे कर दिया था कि उनके पास मजीद गुंजाइश नहीं है। पार्लियामेंट हाउस में कोई ऐसा चैम्बर खाली नहीं है दे, ना ही कोई ऐसी मिसाल माजी में मिलती है कि अपोजिशन की लीडर के अलावा किसी को चैम्बर मिला। इन वजूहात की बिना पर बिलावल भुट्टो जरदारी को चैम्बर नहीं मिल सका था और वो डिप्टी चेयरमैन सलीम माडवी वाला का चैम्बर इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब जब दोनों सियासी जमातों के दरमियान फासले कम हुए हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो एक बड़ा ऐसा इकदाम सामने आया है शहबाज शरीफ का। उन्होंने अपना एक चैम्बर जो कि वो इस्तेमाल भी नहीं करते थे, वो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को दे दिया और ये बिल्कुल मुत्तसिल है शहबाज शरीफ के चैम्बर से। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रहेगी पार्लियामेंट में, क्योंकि बिल्कुल एक ही दरवाजे से एंटर होके 2 अलग अलग चैम्बर्स का रास्ता बनता है और एक में बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे होंगे, एक में शहबाज शरीफ बैठे होंगे। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। बाकी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका। यहाँ पर आपको बताएंगे, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात का वक्त तय पा गया है। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात आज रात 8:30 बजे जरदारी हाउस में होगी और इस मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आज रात 8:30 बजे यहाँ मुलाकात हो रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात का वक्त तय पा चुका है। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात आज रात 8:30 बजे जरदारी हाउस में होगी। मजीद आपको बताएंगे, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की उबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी कर दी है। आपको बताते चले कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश हुए और अदालत की जानिब से आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की उबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी की जा चुकी है। एक और इंटरव्यू के बाद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि फैसला किया है कि अपने मुल्क के लिए बैरूनी दबाव को खाते में ना लाएं और हथियारों से लैस अस्करियत पसंदों को किसी किस्म की कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि 80 की दहाई में सोवियत अफवाद के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका ने उन्हें इस्तेमाल किया था और पाकिस्तानी फ़ौज ही ने उन्हें बनाया था, लेकिन अब इन ग्रोहों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इंतहा पसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि नया क्रैकडाउन बहुत मौसर होगा और हुकूमत 2 लाख असातिज़ा मदरसों में तैनात करेगी जो मदरसों के तालिब इल्मों को अंग्रेज़ी और रियाजी जैसे मज़ामीन भी पढ़ाएंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं कि हमजा शहबाज शरीफ का आज नैब में पेश ना होने का फैसला। नैब को हमजा के वकला के जरिए आगाह कर दिया जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से नैब से दोबारा पेशी के लिए मोहलत मांगी जाएगी। तो हमजा शहबाज शरीफ आज नैब में पेश नहीं होंगे। नैब को हमजा के वकला के जरिए आगाह कर दिया जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से नैब से दोबारा पेशी के लिए मोहलत भी मांगी जाएगी।
साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी ने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है। डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या जाली। मशहूर नजरिए के मालिक नवाब असलम रईसानी अब असली डिग्री लेंगे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी 64 बरस की उम्र में तालीम दोबारा शुरू करेंगे। तो डिग्री तो असली हो या नकली हो, डिग्री डिग्री होती है। इस मशहूर नजरिए को पेश करने वाले नवाब असलम रईसानी अब हकीकी डिग्री लेंगे। कराची से मॉडलिंग के लिए लाहौर आने वाली लड़की के कत्ल की तफ्तीश का सिलसिला जारी है। मकतूला अंडर मैट्रिक और 3 साल से शोबिस में थी। लड़की के वालिद का कहना है कि इकरा सईद कुछ दिन पहले दुबई से वापस आई थी। बेटी को नाहक कत्ल किया गया, कार्रवाई नहीं कराना चाहते। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी। आपको आगाह करेंगे तमाम सूरत हाल। इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आने को है और अभी उसी से उसके बाद तायन होगा। फ़खर इमाम से हम बात करते हैं। फ़खर बताएगा तफ्तीश कहाँ तक पहुंची? जी बिल्कुल, कराची से लाहौर मॉडलिंग के लिए आने वाली लड़की जो यहाँ पर कत्ल हुई 2 रोज़ कबल, इकरा सईद नामी ये लड़की है जो कि कराची से यहाँ पर मॉडलिंग के लिए आई थी और अब इसका लड़की का जो पोस्टमार्टम है जारी है। लड़की के वालिद से हमने बात की है, मीडिया के सामने वो नहीं आना चाहते। अलबत्ता उन्होंने ऑफ द कैमरा ये बताया है कि वो लड़की 3 साल से लाहौर में मॉडलिंग कर रही थी और गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले दुबई से लाहौर भी जो है वो वहाँ आई थी। अलबत्ता वो यहाँ पर कहाँ पर रहाइश पजीर थी, इसके इस हवाले से जो लड़की के वालिद हैं वो बिल्कुल लाइल्म थे। उनका कहना था कि हमें इल्म नहीं था कि वो लाहौर में किस जगह पर जो है रहाइश पजीर है। अलबत्ता अब इस मौत की वजह क्या है, पुलिस ने अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा जो लड़के का मोबाइल फ़ोन डाटा है वो भी चेक किया जाएगा कि लड़की को आखिर कत्ल किया गया या इसकी जो मौत है वो नशे की ज़्यादती की वजह से हुई। तमाम तर हक़ाइक़ जो हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। ठीक है, शुक्रिया फ़खर, आपने हमें आगाह किया है। तो कौमी एयरलाइन की एयर होस्टेस पेरिस में लापता हो गई है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एयर होस्टेस शाज़िया ड्यूटी के दौरान पेरिस से लापता हो गई। फ़ज़ाई मेज़बान गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से पेरिस की फ्लाइट PK 733 पर गई थी। एयर होस्टेस शाज़िया अपने दोस्त मलिक अदनान के साथ मुबैना तौर पर फरार हुई। तो आपको अपडेट करते चलें ये तमाम तर मामला। कौमी एयरलाइन की एयर होस्टेस पेरिस में लापता हुई है और इतलात के मुताबिक ये लंदन गई थी जहां से ये फरार हो गई। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल में अपनी नौयत की अनोखी दरख्वास्त। कस्टम्स एहलकारों ने अपने आला अफसरान के खिलाफ वज़ीर आज़म को शिकायत लगा दी। एहलकारों ने शिकवा किया कि तरबियत देकर चाय बनाने के काम में लगा दिया गया। बात करते हैं वलीद चौधरी से। वलीद बताएगा क्या मामला है? जी देखें, जो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है उस पर अपनी नौयत की एक अनोखी जो दरख्वास्त है वो सामने आई और वो क्या है वो आपको बताते हैं कि जो कस्टम हाउस में इस्लामाबाद में काम करने वाले जो एहलकार हैं उन्होंने अपने ही आला अफसर के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल है उस पर वज़ीर आज़म को जो है वो शिकायत जो है वो जमा करा दी है। आपको ये बताते चलें कि जो शिकायत की कॉपी हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो कस्टम हाउस में तैनात जो एहलकार हैं उन्होंने कस्टम हाउस इस्लामाबाद में जो तैनात ग्रेड 21 के सीनियर अफसर हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत जमा कराई है। और इस शिकायत में एहलकारों का ये मौक़िफ़ है कि जो हुकूमत है उसने करोड़ों रुपए खर्च करके जो कस्टम एहलकार हैं उनको जो है वो भर्ती किया, लेकिन उनका जो असल काम है जो कानून के मुताबिक इनको जिस काम पर जो है वो लगाना चाहिए, इनसे जो ड्यूटी लेनी चाहिए उसके बजाय उन्हें जो है वो चाय पिलाने पर जो है वो वहाँ पर लगा दिया गया। और जो ऐसे एहलकार के जो मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनकी ज़ाती ड्यूटीज़ के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं, तो उसका भी नोटिस लेकर जो ये मामला है इसको फौरी तौर पर हल किया जाएगा। शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। उधर कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर आ गई। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में 23 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। अमल दरामद की सूरत में सारिफीन को दूध 120 रुपए फी लीटर में मिलेगा।
डेयरी फार्मर्स एक्शन कमेटी ने दूध के नए रेट का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक फार्म एक्शन कमेटी ने रेट 108 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया है, जिस पर अमल दरामद का इंदिया दिया गया। इस तरह दूध की फीस 37.5 लीटर कीमत 4050 रुपए हो जाएगी। ताहम दुकानदारों का कहना है कि अभी दूध पुराने निर्ख 94 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। देखिए, ये वजह तो वही लोग बताएंगे, आपको डेयरी फार्मर्स बताएगा कि जी हम क्यों महंगा कर रहे हैं, या होलसेलर बताएगा। जब हमको होलसेलर से डेयरी फार्मर से महंगा मिलेगा तो हमको मजबूरन, हम तो इसी तरह जिस तरह हमसे कोई क्लाइंट लेके जा रहा है, इसी तरह हम डेयरी फार्मर से और होलसेलर से ले रहे हैं। जब वो महंगा करेंगे तो मजबूरन हमको महंगा करना पड़ेगा। दूसरी जानिब आवाम का कहना है कि दूध की कीमतों में इजाफे से लोगों के लिए एक और मुश्किल बढ़ जाएगी। डेयरी फार्मर्स का दूध की कीमतों में अज खुद इजाफे का फैसला अवाम दुश्मनी के मुतरादिफ है। मजीद अगर जो आम बंदा तो मजदूर पेशा है या दिहाड़ी वाला है या बाल बच्चेदार है, मैं डेली 140 का दूध लेता हूँ 1.5 किलो घर के लिए, तो मेरे लिए मतलब वो बोझ बन जाएगा। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि कम से कम हमारा ख्याल करें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। आवाम से ही दुनिया है और अगर आवाम ही मर जाएगी तो क्या बचेगा। दूध की कीमत में इजाफे के बाद सार्फिन के लिए फी लीटर 120 रुपए होने का इम्कान है, जबकि हुकूमती सतह पर इस फैसले की मंजूरी नहीं दी गई है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। तो कराची में दूध मजीद महंगा होगा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध महंगा करने का ऐलान कर दिया है। दूध की फी किलो कीमत में 23 रुपए इजाफे का ऐलान किया गया। खुद साख्ता ऐलान है, खुद साख्ता कीमतें बढ़ाई गई। हुकूमत से ऐसी कोई मंजूरी अभी तक नहीं आई है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध खुद ही महंगा कर दिया और 23 रुपए इजाफा कर दिया। एक साथ ही 23 रुपए इजाफा करके आम आवाम पर बोझ डाला गया है। इंतहाई सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है। हुकूमत को इस पर नोटिस लेना होगा। तमाम सूरत हाल आपको आगाह कर रहे हैं। कराची में दूध मजीद महंगा मिलेगा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध महंगा करने का ऐलान कर दिया है। दूध की फी किलो कीमत में 23 रुपए इजाफे का ऐलान किया गया है। तो एक साथ ही 23 रुपए बढ़ा दिए गए और अब अगर 23 रुपए बढ़ाए जाएंगे तो ये दूध हो जाएगा 120 रुपए फी लीटर, जो कि इंतहाई ज़्यादा है। और इससे आम रिटेलर के पास जब दूध जाएगा और मज़ीद महंगा होगा, जिससे आम शहरी इस दूध को जो है ख़रीदने में मज़ीद मुश्किल में आ सकता है। तो कराची में दूध मज़ीद महंगा होने जा रहा है। हुकूमत को नोटिस लेना होगा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध महंगा खुद ही कर दिया और इसका ऐलान भी कर दिया है। दूध की फी किलो कीमत में 23 रुपए इजाफा किया है। तो ये इजाफा जो है एक साथ किया गया, 23 रुपए इजाफा किया गया, ऐलान भी किया गया। हुकूमत की जानिब से अभी तक ऐसा कोई ऐलान और इसकी कोई मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन ताज़ा दूध अब 120 रुपए फी लीटर फरोख्त होगा, जिसके बाद महंगाई का मज़ीद बोझ पड़ेगा आम आवाम पर, आम शहरियों पर। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध महंगा करने का आज खुद ही ऐलान कर दिया और ये मामला है आम शहरियों के लिए। आम शहरी इससे परेशान होंगे और इसके साथ साथ जितनी भी इंडस्ट्री इसके साथ है वो भी इससे मुंसलिक है, वो भी इससे असरअंदाज होगी। तो ये तमाम सूरत हाल आपको आगाह कर रहे हैं। इंतहाई पेचीदा सूरत हाल बढ़ती जा रही है। कराची में दूध मज़ीद महंगा होगा। डेयरी फार्मर्स ने दूध आज खुद ही महंगा कर दिया। इसके बाद ट्रैफिक के लिए सड़क को खोल दिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे हबीब खान से। हबीब खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? अलग सुबह पेश होने वाले हादसे के बाद जो है अब गुलबाई जो ट्रैफिक फ्लाईओवर है उसको ट्रैफिक के लिए जो है वो बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त जो है अगर मेरा कैमरामैन राहिल अहमद आपको दिखा सके तो यहाँ पे अब से कुछ देर कबल जो है वो मिट्टी के बिजली के जो है वो ट्रक है वो यहाँ लाए गए थे, जिनके जरिए यहाँ पे मिट्टी फैला दी गई है। जो ऑयल यहाँ पर मौजूद था उसको यहाँ पे उसके जो स्लिपरेस जिसकी वजह से सड़क के ऊपर आ गई थी उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मिट्टी डाली गई है और एक ट्रैक्टर के जरिए जो है वो इस मिट्टी को यहाँ पे बिछाया गया है ताकि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो है वो ट्रैफिक यहाँ पे बहाल किया जा सके जितनी जल्दी हो सके। साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ से जो ऑयल टैंकर का यहाँ पे जलने के बाद यहाँ से जो ऑयल टैंकर था उसको भी हटाकर उसका मलबा जो है वो यहाँ से ले जाया जा चुका है। यहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो है वो रोड को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस का जो अमला है वो अब सिर्फ रोड बहाली की कोशिश में लगा हुआ है। साथ साथ जो दीगर जो सिक्योरिटी के इदारे थे वो यहाँ से जा चुके हैं और मुकम्मल तौर पर सड़क की बहाली के लिए जो है वो अब से भी कहा यही जा रहा है कि अब से 1 से 1.5 घंटे आगाह किया तमाम सूरत हाल से। उधर बुनीर के इलाके घाघरा में जाली सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री सर्वमोहर कर दी गई। फैक्ट्री खैर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की अहदेदार फैसल सलीम और उसके रिश्तेदार की थी। जाली फैक्ट्री से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचा है। बात करते हैं आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब, बताएगा क्या कार्रवाई की गई?
हाजीज लबुनीर के इलाके गागरा में FBI की जानिब से जिस फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई है तो वो सिगरेट की एक जाली फैक्ट्री थी। यहाँ पर जाली ब्रांड का सिगरेट तैयार किया जा रहा था और ये फैक्ट्री खैबर पख्तूनख्वा के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक आला ओहदे पर काम करने वाले जो अफीसर हैं तो उस ही की निकली और इस तरह 3 और भी पार्टनर्स हैं। FBI ने कार्रवाई के दौरान इस मौका पर हज़ारों की तादाद में जो सिगरेट ब्रांड हैं, डब्बे हैं, इसी तरह सिगरेट दाने हैं, फिल्टर्स हैं, वो बरामद भी कर लिए और साथ साथ फैक्ट्री को भी सील किया गया। और इसी हवाले से BRO काम का कहना है कि कौमी ख़जाने को जाली फैक्ट्री चलाने की सूरत में 63 मिलियन का नुकसान अब तक पहुंचा है और अगर ये फैक्ट्री आगे भी चल जाती तो इस तरह ठीक है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब आपका। खबर आपको देंगे मुल्तान के थाना दौलत गेट की हुदूद में डकैती की वारदात की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। गुज़िश्ता रोज मुलजमान ने शहरी से 17 लाख रुपए छीने थे। मनाजिर भी आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। डकैती की ये वारदात हुई है मुल्तान में। मुल्तान के थाना दौलत गेट की हुदूद में डकैती की ये वारदात हुई और गुज़िश्ता रोज ये वारदात हुई थी। मुलजमान ने शहरी से 17 लाख रुपए छीने थे। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।